Hello everyone, myself Akash Sindikar. I'm teaching you a very interesting subject that name is physics. Before that, highly welcome to all the students who are admitted in our online foundation course. Your response is always welcome. Okay students, my teaching method is totally depend upon 3W formulas. Now the question arises in front of many students that what is meant by 3W formulas. 3W formulas are why, what and where. So we have to learn every concept. Why means what is the need of this concept, what means what is the actual process of this concept, and where means what are the applications of this concept. So if we learn through this process, then I will give you guarantee you never miss, you never forget any terms. So please concentrate. Now I will provide you your presentation. So now our today's topic is we have to learn introduction to physics. So what are the contents in that? So there are three main terms we have to discuss. That is the origin of physics, means historical background, what is meant by physics, and some basic terms related to physics. So origin of word physics. Physics word is comes from the Greek word physis. Physis means nature. So definition of physics is nothing but the natural phenomena occurring, okay, or the observation of natural phenomena is called as physics. That is the apple drop down from the tree on the earth, okay. So this is also one type of physical phenomena. Also motion of a car, okay, okay, working of an engine, it is also a physical phenomena. So now the branches of physics. Physics is totally divided into two types, that is classical physics and modern physics. We know that classical physics means traditional physics, okay, it is also called as existing system, and modern physics is also called as proposed system, okay. Modern physics is nothing but developed after 19th century, it is called as modern physics, and developed before 19th century, this system is called as classical physics. So there are different terms we have to discuss in classical and modern physics, and both of them we have to learn the syllabus, okay, of physics. Classical mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, and optics. These are the concepts which are related with classical physics. And atomic physics, nuclear physics, quantum mechanics, molecular physics, these are the terms related with modern physics. So one by one we have to learn. And all these, based on all these systems, that is classical and modern, there is a physics, okay, we have to learn physics. So वन बाय वन वी हैव टू लर्न क्लासिकल मैकेनिक्स. सो हमने यहाँ पे पिक्चर दिया है, उसके वजह से आपको इजी जाएगा समझने के लिए कंसेप्ट एक्चुअली क्या है. क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो स्टडी है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फोर्स, ओके. तो स्टडी करना है किसका, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग ए फोर्स, तो उसको बोलेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स. तो उसका एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार, ओके, लोडिंग ऑन ए ब्रिज, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, ओके. These are the basic concepts, and you know that what is meant by force, okay. Then waves. Waves is the study of effects produced by a vibration or an oscillation. Vibration के थ्रू और oscillation के थ्रू जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता होगा उसको बोलेंगे हम waves. उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा पेंडुलम, ओके. पेंडुलम, this creates oscillations. Sound produced by a violin, it is also one type of vibration, effect produced by vibration, this is called as waves. Noise produced by a fighter jet, it is also one type of waves. So this is a classical concept in classical physics. Thermodynamics. Thermodynamics is, it is the vast course or vast branch in our classical physics. It is nothing but the study of effect produced by heat. इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो हीट प्रोड्यूस करता है. मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर, वर्किंग ऑफ इंजन. These are the concepts related with thermodynamics. So thermodynamic, it is the very vast concept which we have to learn in our subject. Then electromagnetism. Electromagnetism is nothing but the electric field and magnetic field, okay. Electromagnetism is the study of effects produced by a charge or a magnet. आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो आपको मालूम होगा पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेट बोलेंगे तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेट. सो कंबाइन of these two we have get electromagnetism.
So this is the best example of electromagnetism is generation of electricity, light thundering, working of heater. These are the concepts which are related with electromagnetism. So optics means production of by light, production by light. Okay, effect produced by light. लाइट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको बोलेंगे हम ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स जब भी आएगा तब हमारे दिमाग में एक ही आएगा, कलर ऑफ द स्काई. ओके, दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल फॉर ऑप्टिक्स. देन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद ऑप्टिक्स. कलर सीन्स इन सोप बबल्स, जो कि चाइल्डहुड डेज में हम करते थे, वो भी एक ऑप्टिक्स का ही एग्जांपल है. दीज आर ऑल आर दी related with classical physics. Then we have moved towards the modern physics, that is atomic physics. Modern physics में ज्यादा करके हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इसको बोलेंगे हम एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इसका एग्जांपल है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. लेजर है इसका एग्जांपल, जो कि वर्किंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट है. तो लाइट, लेजर, एलईडी, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल रिसीवर, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, जो भी कंसेप्ट आते हैं वो सब एटॉमिक फिजिक्स में आते हैं. और ये हमें स्टडी करवाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो ये हम वन बाय वन देखेंगे क्या कंसेप्ट है. अभी बेसिक कंसेप्ट कॉन्सेंट्रेट करो. न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? तो इसमें करेंगे हम स्टडी एटम में जो न्यूक्लियस रहता है उसका और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स. इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा nuclear power generation. Okay, radiotherapy, these are the nuclear physics. Carbon dating, quantum mechanics. Quantum mechanics ये टर्म क्या है? ये टर्म है इसलिए हम यहाँ पे है, जो कि नया एडवांसमेंट हमें मिल रहा है वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही मिल रहा है. मोबाइल बनना, लैपटॉप होना, लैपटॉप मोबाइल क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ही यहाँ पे हम बना पाए हैं, रिसर्च करने के बाद बना पाए. जैसे कि माइक्रोस्कोप है, एमआरआई मशीन है, वो सब क्वांटम मैकेनिक्स की हमारे पास देन है. तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में. तो उसकी डेफिनेशन दी है, विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट एटॉमिक स्केल. ओके, एट एटॉमिक स्केल लेवल पे हम इसके एनर्जी का स्टडी करेंगे. तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स. देन सम बेसिक कंसेप्ट्स दैट इज रिलेटेड अबाउट मोशन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी हमारे सिलेबस में बहुत सारा बताया गया है. सर्कुलर मोशन एक चैप्टर है हमारे पास, रोटेशनल मोशन है, तो इस पे ही चैप्टर हमारे बने हुए हैं. तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या रहती है, मैं आपको ओनली फिगर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ. वाइब्रेटरी मोशन क्या रहता है आपको समझ में आएगा या देख के. लीनियर मोशन क्या रहता है, लीनियरली जो जाता है उसको लीनियर मोशन बोलते हैं. लीनियर कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, कर के थ्रू जो जाता है मोशन होता है उसका, उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन. ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हमें मालूम है पेंडुलम. रोटेटरी मोशन का एग्जांपल फैन, इसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे, रोटेटरी घूमता है. सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, इट इज सर्कुलर मोशन. so these are different examples. now but what is meant by motion? तो मोशन क्या है? इट इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन अगर उसके बदलते होंगे टाइम के हिसाब से तो हम उसको बोलेंगे मोशन. सबको मालूम है मोशन क्या होता है. तो मोशन मीन्स मूव होना एक जगह से दूसरी जगह पे. तो यहाँ जब मोशन हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आएंगे. बहुत बेसिक टर्म्स है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम. सो व्हाट इज दिस? यू नो दैट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसमें अभी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का भी मामला है. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है, ये हमारे लिए नया है. तो जब हम पढ़ेंगे मैथ में तो बहुत सारा समझ में आएगा. तो मैं जनरली बताने की आपको कोशिश करूंगा. डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं आपको एग्जांपल. यहाँ पे एक आदमी जा रहा है, इसने स्टार्ट किया है, नॉर्थ डायरेक्शन से जा रहा है, फिर से इसने टर्न लिया है और यहाँ पे एंड किया है. मतलब वहां पे जाने के लिए उसको कौन सा रास्ता मिला, तो हमने दो पाथ चूज किए. ओके, एक स्ट्रेट लाइन का और बाद में कर्व लेंगे. तो यहाँ पे यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो आदमी का वो लेंथ है जो कि जा रहा है, यहाँ के अगर 5 मीटर होगा, यहाँ से अगर 3 मीटर होगा, तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, स्टार्ट का पॉइंट और फिनिश का पॉइंट. ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स. तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो पहुंचने के लिए लगता होगा उसको स्टार्ट से फिनिश तक, तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. और जो पाथ कवर कर रहा है वन फ्रॉम टू वन स्टार्टिंग से अनदर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस. सो दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट.
This is also given that displacement, velocity, acceleration. One by one concept is depend upon differentiable and integration. So डिस्प्लेसमेंट का आपने अगर डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये चीजें क्या है, ये आपको सब वन बाय वन पता चलेंगी। आप ओनली ध्यान दो अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है, आपको समझ में है। वेलोसिटी क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अभी यहाँ पे आपको दिया है s इज इक्वल टू डी बाई टी, मीन्स इसका अर्थ क्या है, तो हमारा जो टाइम डिस्टेंस, ओके, s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, ओके। अभी टाइम अगर चेंज करेंगे तो डिस्टेंस पे असर हो रहा है। तो ऐसे एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पर जो असर गिरता है उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव, ओके। हमने डिफरेंशिएट करना मतलब क्या करना, वन वैल्यू चेंज हो रही है, वन क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएट करना। एक्चुअली इंटीग्रेशन मतलब क्या है, तो इंटीग्रेशन बहुत सीधा तरीका है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड आउट करना। तो आपको मैं वन बाय वन अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताते जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है, ये होने के बाद मैं यहाँ पे एंड करता हूँ ये वीडियो। यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है और यहाँ पे पॉइंट दिए है मैंने ए टू बी, और ए टू बी के बीच में का जो है वो है हमारा एरिया। मतलब एक ही फिगर से मैं आपको थ्री कंसेप्ट बता सकता हूँ। यहाँ पे जो ए टू बी है मतलब ये हो गई इसकी लिमिट फ्रॉम ए टू बी, और मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है ए टू बी के बीच में का उसको बोलते हैं एरिया। एरिया मतलब ही इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो कर है उसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मतलब ये उसका डेरिवेटिव, ओके। तो थ्री कंसेप्ट यहाँ पे पता चले। स्लोप, ये जो स्लोप है यहाँ पे कर लाइन का उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव। ये दो पॉइंट के बीच में का जो एरिया निकालना है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो दो पॉइंट है ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट। सो वी कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन इन दैट वे, लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट फंक्शन। फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं आपको मालूम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक्स, टू एक्स, लॉगरिथमिक जैसे कि लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओके। सो द फंक्शन के ऊपर ही हमारा डिपेंड रहता है डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन निकालना और लिमिट निकालना। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको और नए वीडियो अगर चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, गुरुकृपा साइंस एकेडमी। ओके, थैंक यू।